सबसे पहले हमने पढ़ा है कि प्लानिंग डेवलपमेंट क्या है। हमारे इस लेक्चर सीरीज फिफ्थ जो हम अर्बन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं या अर्बन जो चेंज आई है अर्बन एरियाज में, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बीच में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज चेंज कम इन इंडियन थ्रू फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से क्या क्या चेंज आई इंडियन में, ये तो हमने पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन में। तो उसको थोड़ा रिवाइज करने के लिए कि अगर हम देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। द गवर्नमेंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर ओपनिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। Even today, the thousands of the private universities have opened in order to spread the education. So in first 5-year plans, the first 5-year plans were drafted in 1950 and it was implemented in 1953. The first 5-year plan in education sector was implemented in 1953. At that time, the literacy rate was 18%. Till 2001. When we do the survey in 2001, the literacy rate goes up to 65%. So हम ये कहेंगे कि फर्स्ट 5 प्लान से एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, सुधार आई, स्कूल्स खुले, कॉलेजेस खुले। So in 2001 we have a figure that is 65. यानी 50 years में हमने 65 पर ग्राफ पूछा है एजुकेशन का। So in 2001 the government, in order to achieve the target of 100% or 99% of education, the government introduced this SSA scheme in education sector, Sarva Shiksha Abhiyan scheme. That means SSA scheme, Sarva Shiksha Abhiyan, sorry. So that scheme was that in every 1 kilometer a primary school or a middle school shall be opened, particularly in rural areas where there is stagnation, or we can say that there is not the schools. So in every kilometer that a doorstep schools has opened in order to get the education. So by these plans, by these 5-year plans, so today we have the literacy rate 75%. 75% in 2001, or it could be enhanced in next survey. तो आज की डेट में इससे भी ज़्यादा होगी। 68 थी हमारे पास 2011 तक, तो आज की डेट में इससे ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हमारे में आई कि दैट इज एजुकेशन सेक्टर। इफ वी सी द सेकंड, दैट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस। Deprived sections, those sections which are downtrodden in the society, or we say that those sections which live in the below poverties, or we say that those sections which we can say the scheduled caste and the scheduled tribes. इन scheduled caste और scheduled tribes को भी इससे फायदा मिला 5-year plan से जब आज़ाद हुआ इंडिया। So in this way the constitution, article 334 of Indian constitution give the reservation for scheduled castes and scheduled tribes in the parliament, Indian parliament, state legislative assemblies. So reservation is that 84% of reservation today in parliament belongs to scheduled caste, while 47% members in the parliament that is scheduled tribes. कि scheduled caste जो deprived section हमारी society का है, पिछड़ा हुआ तबका, गरीब तबका, उनको भी reservation मिली by these 5-year plans. Also the government has introduced in 5-year plan many schemes to upliftment these deprived sections. लोकसभा में भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी इनको रिजर्वेशन मिली, चाहे वो MBBS हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, या इट इज ए प्रोफेशनल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग हो, या फार्मेसी कोई कोर्स हो, या कॉलेजेस हो, इनमें भी इनको रिजर्वेशन मिली। Also they have given the scholarships, 5-year plans, the scholarships have given. So we can say to improve this upliftment. Also if we see that the scheduled tribes, they belong to the hilly areas, or they are the deprived, they belong outskirts of the mainstream population, ये mainstream population से दूर रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क योजना, सड़क के इन पिछड़े हुए
इन बिछड़े हुए लोगों को कनेक्ट किया गया मेन स्ट्रीम के साथ बिकॉज ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। तो इतना डीप हमें नहीं जाना है। इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, औरतों की जो ये 5 ईयर प्लान्स है इनमें इम्प्रूवमेंट आई स्टेटस ऑफ वुमेन। लाइक दैट द गवर्नमेंट हैज ओपनड many training centers for women like ITIs, industrial training centers, ITIs, industrial training, जहाँ पर ट्रेड सिखाते थे औरतों को, कढ़ाई का काम, टेलरिंग का काम। या आज की डेट में प्रोफेशनल कॉलेजेस में इनको रिजर्वेशन है, जॉब्स में प्रोफेशनल कॉलेज में इनको रिजर्वेशन है, जॉब्स में भी इनको रिजर्वेशन है। जॉब्स डाइवोर्स्ड जो वुमेन है इनको भी रिजर्वेशन दी गई है। So we can say that to improve the status of women, 5-year plans have introduced new schemes for to upliftment the women. Like अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, 90% एजुकेशन वाज इन 1951 जब आज़ाद हुआ, तो इन 2001 इट वाज 44%। इतनी इम्प्रूवमेंट हुई एजुकेशन सेक्टर में भी। इसी तरह रूरल रिकंस्ट्रक्शन, रूरल डेवलपमेंट में, देहातों में काफी काम हुए देहातों में, यानी ग्राम सड़क योजना। या औरतों में और एक स्कीम आई लाइक दैट आज की डेट में उज्ज्वला स्कीम है। उज्ज्वला स्कीम है औरतों की भलाई के लिए, ये 5 ईयर प्लान्स के मुताबिक। या और एक स्कीम है जनानी सुरक्षा योजना, औरतों की अपलिफ्टमेंट के लिए स्कीम्स है। या हम ये कहेंगे कि आज की डेट में आशा वर्कर्स, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनके लिए कि ये सारी सुविधाएं औरतों की अपलिफ्टमेंट, ये प्लान है 5 ईयर प्लान। या इसी तरह रूरल रिकंस्ट्रक्शन, रूरल डेवलपमेंट, कैसे गांव में तरक्की हो, कैसे गांव कनेक्ट हो जाए शहरों के साथ, कैसे गांवों में हम एम्प्लॉयमेंट लाए, कि इस तरह गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें खोली फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, रूरल डेवलपमेंट के लिए। और एग्रीकल्चर में जब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा रिवोल्यूशन आया, एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी गई, बैंकों ने सब्सिडी दी, गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान बैंक सब्सिडीज आए, तो डेवलपमेंट बैंक आए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक आए, ताकि किसानों को फैसिलिटी मिले। गवर्नमेंट ने सब्सिडी पे सीड्स रखे हैं, गवर्नमेंट ने नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की है एग्रीकल्चर में। तो हम ये कहेंगे कि ये जो सारा चीज है, इट इज 5 ईयर प्लान which improve the status, which improve these things for the upliftment of the society.